Welcome to Inside News. This is Jyoti. Let's dive into the details. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath convened a strategic meeting in Lucknow to access a development action plan for the Lucknow division, covering districts such as Hardoi, Raebareli, Unnao, Sitapur, and Lakhimpur Kheri. The plan encompasses 3,397 proposals worth rupees 42,891 crore, aimed at infrastructure, tourism, and cultural preservation. CM Adityanath emphasized each district's unique legacy and called for fast-tracking rural road construction, flyovers, and black spot removal. He urged officials to prioritize input from public representatives and maintain open communication. Religious site development in every assembly constituency was also highlighted to boost tourism. Market expert Sharad Kohli criticized US President Donald Trump's decision to impose a 25% tariff on Indian goods, calling the move unjustified. Kohli emphasized that India retains the sovereign right to engage in trade with any nation it chooses, and suggested that the rationale behind the tariffs linked to India's association with the BRICS and its trade practices lacks merit. His remarks reflect growing concern among Indian economists and business leaders over the potential impact of the tariff on bilateral trade and key export sectors. Trump's decision on Truth Social announced a while ago of imposing 25% tariffs on India. And the reasons he is giving there, I think the reasons are not justifiable. First of all, he says India is amongst the countries who levies highest tariffs. Well, we should respect that the structure of each economy is different. We are primarily an agricultural economy. Half of our workforce comes from agriculture. We cannot open dairy and agriculture for America when crores and crores of people are dependent on that sector. He wanted non-vegetarian fodder to be fed to our cattle here, which we cannot allow. I think that probably has irked him and he's levied those tariffs. So I think the structure of each economy has to be understood properly, number one. Number two, he says India is buying oil and defense equipment from Russia. I think every country has got a right and sovereign right to deal with any country that it wants. If we get cheaper oil and if we have age-old relations with Russia, we have all the rights to deal with Russia. Trump's decision on Truth Social announced Trade expert Abhijit Mukhopadhyay weighed in on US President Donald Trump's announcement of a 25% tariff on Indian goods, cautioning that the road ahead will be challenging. He noted that Trump is likely to adopt a tough negotiating stance, suggesting that India should prepare for intense bargaining in upcoming trade discussions. Mukhopadhyay's remarks reflect broader concerns among the analysts about the implications of the tariff hike and the complexities of reaching a mutually beneficial agreement amid geopolitical tensions. My always opinion was that in spite of the entire noise about, there will be a mini deal immediately, very soon there will be some understanding which will be reached between the India and the USA. My position was always that this is not going to be very easy because President Trump is going to bargain pretty hard. That is the fact of the matter. And then, of course, definitely, this kind of, usually he comes on the social media, particularly Truth Social, and then
introduces all these kind of decisions. But anyway, doesn't matter. It's their country, their president, and then they can do whatever they want to. But then the crux of the matter is that it is pretty evident that a lot of hard bargaining is going on, and then Indian trade negotiators' skills will be tested probably at the deepest end. My always opinion was that Deshmukh received a heroic welcome in her hometown Nagpur after her historic victory in Batumi, Georgia. The 19-year-old prodigy defeated fellow Indian Grandmaster Koneru Hampi in a dramatic tie-break final to become the first Indian woman to win the prestigious title and earn the Grandmaster title. Overwhelmed by the warm reception, Divya expressed her joy, saying she was very happy to see so many people gathered to celebrate her achievement. She credited her parents as the biggest influence in her journey, stating she wouldn't have reached this milestone without their support. Her triumph marks a major moment for Indian women's chess and has secured her a spot in the 2026 candidates tournament. मला खूप छान वाटत आहे. इतके सगळे लोक इथे मला आले आहे, मला फेलिसिटेट करायला आले. खूप जास्त छान वाटत आहे की चेसला इतके रेकग्निशन मिळत आहे आणि मी खूप जास्त खुश आहे. दिव्या, अनेक वर्षांचा तुझा त्या आहे, तुझ्या फॅमिलीचा त्या आहे, अनेक वर्षाची मेहनत आहे तुझी. हिंदी में भाऊ क्या कर रहे हैं? मला मैं बहुत खुश हूँ. मला सांग तुला काय प्रश्न. हिंदी में बताइए. मैं बहुत खुश हूँ. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि इतने सारे लोग आए हैं, चेस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड मेरा दिल बहुत खुश हो गया. क्या कहेंगे आज इस तरीके से आपका जो परिश्रम रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? बराच त्याग केलाय. 10-12 वर्षापासून डेडिकेशन एकच ध्येयाने झपटलं होतं तुला. आई बाबाचा सगळ्यात जास्त रोल आहे माझ्या करिअरमध्ये आणि त्यांच्यामुळे मी इथे आली आहे. विदाउट मी त्यांच्या नाही आली असती. या यशाचं श्रेय कुणाला देशील? डेफिनेटली माझ्या पेरेंट्सला, माझी पुणी फॅमिलीला, माझी बहीण आर्या देशमुखला, माझी आजी आबा आत्या काकू आणि आय थिंक माझे फर्स्ट कोच राहुल जोशी सर, त्यांना ऑलवेज पाहिजे होतं की मी ग्रँड मास्टर बनेल आणि आय थिंक हे त्यांच्यासाठी. इस पूरे यश का श्रेय किसको देती है आप? इस पूरी जो कामयाबी है मेरे पेरेंट्स को, मेरे बहन को और मेरी पूरी फॅमिली को एंड मेरे फर्स्ट कोच राहुल जोशी सर को. अभिजित जी तुझ्यासोबत नेहमी असतात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, आज पण इथे उपस्थित आहेत. तुझ्या साला त्याच्यावेळेस काय भावना आहे? म्हणजे अभिजित सर माझ्यासाठी खूप लकी आहे. ते जिथे पण असतात मी ऑलवेज ट्रॉफी घेऊन येते. फिर आगे का लक्ष्य क्या है आपका? क्या निर्धारित किया है? अभी तो मैं ये महीना थोड़ा सा रेस्ट लूंगी एंड देन नेक्स्ट महीने ग्रैंड स्विस खेल रही हूँ. क्या कहेंगे किस तरीके से परिश्रम जो पापा ने किया था आपके लिए, उनके लिए क्या कहेंगे आप? आई डोंट थिंक मैं कुछ भी कहूंगी तो वो काफी होगा. In a heartfelt initiative, the Indian Youth Congress (IYC) sponsored the education of 30 children from Poonch who lost their parents in Pakistani shelling during Operation Sindoor. Each guardian received 40,000 check to support the children's schooling. The ceremony held in Poonch was led by Congress leaders Tariq Ahmad Karra, Uday Banu Chib and Raman Balla, who emphasized the party's commitment to standing by affected families. The gesture was made on behalf of Rahul Gandhi, leader of the opposition, highlighting his pledge to support vulnerable children in conflict-hit regions. शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए जो है पहुंच के वो शहीद वो वीर जिन्होंने अपने जान देकर इस मुल्क की सलामती के लिए हमेशा के लिए जिंदा किया है, उनके परिवार यहाँ बैठे हैं, खासतौर पे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हैं. हम आप सबको सैल्यूट. शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों का हम हमेशा निशान रहे. तो मैं पूंछ में जब वार के दौरान, शेलिंग के दौरान हमारे बहुत लोग शहीद हो गए और जब पूंछ की आवाज कोई उठाने को तैयार नहीं था, जब नेशनल मीडिया ने भी पूंछ के शहीदों को इग्नोर कर दिया, जब मुल्क की सरकार ने भी यहाँ के शहीदों को नजरअंदाज कर दिया और पूंछ का नाम कहीं नहीं आया, तब पूंछ के लोगों के आंखों में आंसू थे कि हमें कोई पूछने वाला नहीं आया.
उसी वक्त हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी खसूसी तौर पर पूंछ के लोगों से मिलने, हमारे जो शहीद हैं उनके परिवारों का दुख दर्द बांटने, उनकी सपोर्ट के लिए खसूसी तौर पर राहुल गांधी पहुंचाए और आप सब परिवारों से मिले और मिलने के बाद आपके हक की आवाज जो है वो पार्लियामेंट तक उठाई। हमारे सदर, हमारे लीडर जनाब तारक हमीद तरा साहब ने पीसीसी की तरफ से जो है इस बात को बहुत गंभीरता से सीरियसली लिया और इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर आज दिल्ली से आए हैं, उनको डायरेक्शन भी आई तैयार करें और उन बच्चों की मदद, और राहुल जी ने फैसला लिया है कि हम इन बच्चों की मदद करें। उसी स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं, उसकी शुरुआत जो है आज जो है हम कर 2 साल के लिए, अगले 2 साल के लिए जो है हम हर बच्चे को जो है वो हर बच्चे को 40,000 रुपए जो है आज मदद देने चाहिए। और हमने ये फैसला किया है कि 12th क्लास तक स्कूलिंग मुकम्मल होने तक बच्चों की फीस और जो है बुक्स जो है उसका खर्चा जो है वो हर बच्चे को है जो हम देना चाह रहे हैं। और एक परिवार में कहीं 2 बच्चे भी हैं, 4 भी हैं, किसी परिवार में 6-6, 7-7 बच्चे भी हैं, तो हर बच्चे को हम जो है वो 40,000 रुपए पर बच्चे जो 2 साल के लिए जो है हम आज देने जा रहे हैं। और उसकी फीस, स्कूल की फीस और बुक्स का जो खर्चा है वो हम 2 साल के लिए जो है आज देने जा रहे हैं। और ये सिलसिला आगे इन बच्चों के साथ कंटिन्यू रहेगा जब तक उनकी स्कूलिंग मुकम्मल ना हो, यानी कि 12th क्लास से जब तक पास हो ना हो तब तक इन बच्चों को जो है पार्टी की तरफ से शहीदों को, जिन्होंने इस देश के लिए जो है पहुंच के Public Works Minister Vikramaditya Singh visited the disaster-struck areas of Mandi, Himachal Pradesh following devastating flash floods and landslides triggered by cloudburst. He assured residents that Chief Minister Sukhwinder Singh Sukho is personally overseeing relief efforts with the coordinated action from the Deputy Commissioner SDRF and DRF under the department. Singh expressed deep sorrow over the loss of lives and damage to over 20 homes, emphasizing that wherever damage has occurred, people will receive full support from the government. Controlled blasting using robo machines is being deployed to clear blocked roads, and a roadmap is being prepared for AI-based early warning systems to improve disaster preparedness. हर तरीके से इसकी हाई लेवल मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री जी वो कर रहे हैं। उसमें जितने भी हमारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सभी अधिकारी हैं और सभी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो उसमें अपना पूरा फीडबैक दे रहे हैं। एसडीआरएफ के लोग हैं, एनडीआरएफ के साथी हैं, सब लोग उसमें अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों में तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं जब ऐसी कोई घटना घटती है तो कभी कभी थोड़ा सा बेबस भी हो जाते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि त्रासदी के आगे कोई भी हर चीज़ पूरी नहीं हो पाती है, मगर फिर भी पूरा प्रयास रहता है कि हम इसको ठीक करें और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें कोई भी राजनीति ना होनी चाहिए, ना होएगी, ये भी मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पर भी इफेक्ट हुआ है, जहाँ पर भी नुकसान हुआ है, वहाँ के लोगों को पूरा सहयोग और समर्थन सरकार की ओर से मिलेगा, इसका मैं पूरा विश्वास दिलाना कि हम पूरी मजबूती से इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। मगर मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि सरकार इस पे तो मंथन कर ही रही है कि कैसे हमें जो डिज़ास्टर हो जाता है उस पे क्या कार्य है, मगर इस पे जो है प्री डिज़ास्टर के ऊपर भी सरकार ने अब सोचना शुरू कर दिया है। किस तरीके से अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो है अब हर देशों में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है और हर कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही है, इसलिए हमें उनसे सीख लेने की आवश्यकता है। इसमें बहुत से एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई है, चाहे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें सहयोग देने की बात है, या और चीज़ें हैं, उसको भी हम सरकार के माध्यम से आने वाले समय में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। उसका एक पूरा हम डिटेल्ड रोड मैप जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ओर से तैयार करवाएंगे। केंद्र सरकार से भी उसमें सहयोग जो है वो मांगा जाएगा, ताकि भविष्य में जहाँ पर भी इस तरीके की अगर कोई स्थिति बन रही है तो उसका पहले ही वहाँ के लोगों को, उस क्षेत्र के लोगों को उसके बारे में जानकारी प्रदान की जाए, ताकि इस तरीके की जो दुर्घटना, खास करके जो जान की कीमत जो जाती है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको हमको ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम पूरे तरीके से यहाँ के लोगों के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि विकास हो, डेवलपमेंट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, मगर जो है विकास
वो प्रदेश की जो है सस्टेनेबिलिटी के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। इसका भी हमको खास ख्याल रखना है। जिस तरीके से कटिंग हो रही है, आपने देखा कितने NHAI के भी मसले उठे हैं, और आपका जो मौर्थ का ये सड़क आपकी मंडी से लेकर हमीरपुर तक बन रही है, इसका भी 2 पैकेज है। इस पे भी कितने लोगों ने मसले उठाए हैं। लगातार इसमें लोगों का विरोध हो रहा है। कई मकान हैं वो हवा में लटके हुए हैं, उसमें डंगे नहीं लगे हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें देखना है कि कटिंग होनी चाहिए हर तरीके। In Nainital, Uttarakhand, Kotwal Hemchandra Pant shared details of a sensitive incident involving a skewful complaint. Both parties were summoned to the police station for inquiry, during which a girl unexpectedly intervened, stating that the boy involved was not at fault and that she was there to support him. Her family, unaware of her whereabouts throughout the day, arrived at the station concerned as her phone had been switched off. They were surprised to find her there, and she refused to return home, alleging mistreatment and expressing fear of being beaten. The matter is being handled with care by local authorities. एक शिकायत मारपीट संबंधी आई थी हमारे पास में थाने पे। उसमें हमने दोनों पक्षों को बुलाया था थाने पे। तो इसमें एक तीसरा पक्ष, एक लड़की आई थी जिसने ये बताया कि ये लड़का गलत नहीं था, उसके पैरवी के लिए आई थी। तो इनके परिजन आए, उन्होंने कहा कि ये लड़की हमारी दिन में से कहीं चली गई थी और अब तक घर नहीं है, हमें चिंता होती, इसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था, ये यहाँ बैठी है। तो इसी बात पर लेकर के इनका लड़की और इसका आपस में विवाद हुआ। तो लड़की अपने घर जाने के लिए मना कर रही थी, बिल्कुल मैं घर नहीं जाऊँगी, मेरे को मारपीट करते हैं और फिर मेरे को मार देंगे। तो इसी बात को लेकर के इनका विवाद हुआ। लड़की फिलहाल अपने घर जाने को तैयार नहीं है, और जैसा भी है इसकी माँ को बुला रखा है, चंडीगढ़ में रहती हैं, और सुबह आ जाएंगी तो उसके बाद जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों ने विरोध अभी कोई ऐसी तहरीर तो आई नहीं। एक तहरीर हमारे पास में आई है जिसमें कुछ मौलवी के खिलाफ जो है एक एप्लीकेशन उन्होंने लिखी है, तो उसमें देखते हैं, जांच करेंगे, उसमें जो भी तथ्य सही पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक शिकायत In Jharkhand's Bokaro district, police successfully foiled the emergence of a new criminal gang by arresting 3 armed individuals in Sector 3 of BS City. Acting on a tip-off, the authorities seized a country-made pistol, a live cartridge of sharp weapon and a bullet motorcycle. SP Harvinder Singh stated that the accused were attempting to establish dominance in the area, with one of them having a prior criminal record. The swift action prevented a potential gang clash and disrupted their plans to assert themselves as a new force in Bokaro's crime landscape. टाइप का एक लड़ाई 2 गुटों के बीच में मैं शुरू हुआ और फिर उसको आगे बढ़ता गया, और फिर उन्होंने, क्योंकि ये आदमी जो है थोड़ा सा आपने देखा कि आपराधिक इतिहास है, आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो उसने जो है और लोगों को बुलाया रीइंफोर्समेंट के तौर पे, और हथियार के साथ बुलाया, तो संभवतः कुछ बड़ा ही सोचा था। तो वो जो है टाइप से हो गया हमारा एक्शन से, और टल गई वो घटना। आपस में जो होता है एक सोसाइटी में जो नए गुंडा बनने का जितना शौक होता है, तो यंगस्टर है, तो एक दिमाग में एक इमेज रहती है कि अपना वो बनाना है कि मेरा नाम चले। उसी तरह से ये जो है इस तरह के लोग प्रयास करते हैं। देखिए आप पुरानी हिस्ट्री देखेंगे, मारपीट का ही जो है टाइप का एक लड़ाई 2 गुटों के बीच में मैं शुरू हुआ और फिर उसको आगे बढ़ता गया, और फिर उन्होंने, क्योंकि ये आदमी। In Paschim Medinpur, West Bengal, BJP leader Dilip Ghosh criticized the Congress party, alleging that its members often follow instructions from foreign entities like China and former US President Donald Trump. He emphasized that India is now a global leader in commerce, industry, defense and politics, and urged Congress to abandon outdated habits. Ghosh asserted that the rebellious world now moves in step with India, highlighting the nation's rising influence on the international stage. उनका ये आदत पड़ गया है, कभी चीन के निर्देश से, कभी ट्रंप के निर्देश से भारत कभी चलता था कांग्रेस के जमाने में। आज दुनिया को चलाने वाला है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वेपन्स हो, पॉलिटिक्स हो, सब जगह भारत नेतृत्व कर रहा है। इसलिए वो अपना पुराना आदत सुधारे, भारत के साथ बाकी दुनिया चलता है। पीएम मोदी बोल रहा है कि सीज फायर ट्रंप के निर्देश में नहीं होता, कोई बात ही नहीं होता ट्रंप के साथ। नहीं, कोई नहीं विश्वास करता है देश का। केवल राहुल गांधी जैसे लोग जो विरोधी कुछ नहीं कर सकते हैं, हर एक नया झूठा इल्जाम लगाते हैं और फिर अपने वो खुलासा हो जाता है। अभी चिल्ला रहे थे कहाँ गए पहलगांव के वो अपराधी, देख लिया ना, महादेव पहाड़ में जाके महादेव के पास चले गए सब। तो ये सरकार बार बार कर रही है, और सेना का पराक्रम पर जो उंगली उठाते हैं देश उनको क्षमा नहीं करेगा। 3 आतंकवादी पहलगाम अटैक के
खत्म हो चुके हैं महादेव होना ही था। महादेव हिल्स में उनका जो सदगति हुई है, हमारे सेना का जो पराक्रम है एक बार फिर सम्मानित हुआ। देश के बाहर कोई दुश्मन हो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और देश के अंदर भी कोई दुश्मन हो उसको चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाए। उनका ये आदत पड़ गया है, कभी चीन के निर्देश से, कभी ट्रंप के निर्देश से भारत कभी चलता था कांग्रेस के जमाने में। आज दुनिया को चलाने वाला है, चाहे कॉमर्स हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे वेपन्स हो, पॉलिटिक्स हो, सब जगह भारत नेतृत्व कर रहा है। इसलिए वो अपना पुराना आदत सुधारे, भारत के साथ बाकी दुनिया चल रहा है। पीएम मोदी बोल रहा है कि सीज फायर ट्रंप के निर्देश में नहीं होता, कोई बात ही नहीं होता ट्रंप के साथ। नहीं, कोई नहीं विश्वास करता है देश का। केवल राहुल गांधी जैसे लोग जो विरोधी कुछ नहीं कर सकते हैं, हर एक नया झूठा इल्जाम लगाते हैं और फिर अपने वो खुलासा हो जाता है। अभी चिल्ला रहे थे कहाँ गए पहलगांव के वो अपराधी, देख लिया ना, महादेव पहाड़ में जाके महादेव के पास चले गए सब। तो ये सरकार बार बार कर रही है और सेना का पराक्रम पर जो उंगली उठाते हैं देश उनको क्षमा नहीं करेगा। 3 आतंकवादी पहलगाम अटैक के खत्म हो चुके हैं महादेव होना ही था। महादेव हिल्स में उनका जो सदगति हुई है, हमारे सेना का जो पराक्रम है एक बार फिर सम्मानित हुआ। देश के बाहर कोई दुश्मन हो उसको नहीं छोड़ा जाएगा और देश के अंदर भी कोई दुश्मन हो उसको चुन चुन कर ठिकाने लगाया जाए। उनका ये In Meerut, Uttar Pradesh, 2 wanted criminals, each carrying Rs 25,000 bounty, were injured during a dramatic police encounter on Pahalda Road in Mawana. The duo, identified as Suhail alias Devil and Ballu alias Jia Mehndi, were suspects in the sensational Sunil murder case. When police attempted to stop them for checking near Niloda Cut, the accused opened fire, prompting retaliatory action in which both sustained gunshot wounds to the legs. Authorities recovered 2 illegal firearms, 315 bore and 32 bore pistols, along with live cartridges and a motorcycle without a number plate. SP Rural Rakesh Mishra confirmed that the accused had a history of criminal activity and were trying to establish dominance in the area. Their arrest has led to key revelations in the murder investigation, and the police teams are now pursuing their absconding accomplices. क्षेत्र मवाना अंतर्गत मवाना कस्बे में फलावदा रोड पे नीलोहा कट के पास देर रात पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक बाइक पे सवार 2 संदिग्ध युवकों को जब रोककर चेक करने का प्रयास किया गया तो अचानक उनके द्वारा पुलिस की चेकिंग टीम पे फायरिंग कर दी गई। जवाबी सेल्फ डिफेंस की पुलिस की फायरिंग में ये दोनों व्यक्ति घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इनकी पहचान सुहेल उर्फ डेविल और बल्लू उर्फ जिया मेहदी नामक बदमाशों के रूप में हुई है, जो मवाना कस्बे के ही निवासी हैं और ये 25-25 हज़ार रुपये के पुरस्कार घोषित अपराधी हैं, जो हत्या के एक प्रकरण में थाना मवाना से ही वांटेड थे। विगत दिनों 15 जुलाई को तिहाई मोहल्ले के रहने वाले सुनील नामक व्यक्ति को इन दोनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर गोली मार दिया था, जिनकी बाद में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इनके पास से 2 तमंचे, कुछ कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। In the monsoon session of Parliament, Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav criticized the centre over the US imposing a 25% tariff on Indian goods. He questioned the government's decade-long claims of friendship with the US, asking what kind of study led to such one-sided trade policies. Yadav warned this could mark the beginning of a bure din bad days for India's youth who are already struggling with unemployment. The opposition views the move as a setback to India's diplomatic strategy and fears it could hurt several sectors of the economy. His remarks echo growing public concern over economic vulnerability. तो ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी? आप सोचिए, 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा।
अखिलेश सर अभी ट्रम्प ने ट्विटर पे फिर पोस्ट किया इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का ऐसा लग रहा है कि बार बार वो हमलावर हो रहा है। अभी डेड इकोनॉमी भी देखिए वो क्या कह रहे हैं उस पे, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपना खुद का देखें। महंगाई बढ़ रही है, रोज़गार है नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे रही है, किसानों को आय दोगुनी की बात थी वो नहीं दे पा रहे हैं। न जाने कितने बड़े पैमाने पे किसान खड़े हुए हैं जिससे उनको खाद मिल जाए, खाद नहीं मिल पा रही है। आप देखिए ना ट्रेड डेफिसिट चीन से क्या है। आप दूसरे देशों के मुल्कों का हिसाब किताब लगाइए, आपके अपने लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं है। हर साल लाखों लाखों लोग भारत छोड़ के जा रहे हैं। तो अगर अमेरिका ये बात कह रहा है तो अमेरिका किसी आधार पे तो कह रहा होगा, और सरकार को तो कुछ कहना चाहिए, क्योंकि 11 साल से कौन सी मित्रता बढ़ा रहे थे कि 11 साल के बाद ये दिन, तो ये 11 साल से कौन सी स्टडी चल रही थी। आप सोचिए 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज। During the monsoon session of Parliament, Trinamool Congress MP Kriti Azad launched a scathing attack on Prime Minister Narendra Modi following US President Donald Trump's announcement of 25% tariff on Indian imports. Azad alleged that Modi was working in favor of Trump and unable to oppose his aggressive trade policies. He went on to say Donald Trump is a madman, and even though their wavelengths match, Trump is much more stronger and harsher than Modi. His remarks added fuel to the ongoing debate over India's diplomatic posture and economic vulnerability amid rising global protectionism. ये तो स्वाभाविक था, मालूम है। दोस्ती क्या तगड़ी है। नौकरी करते हैं नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप का, और नौकरी साफ साफ दिखती है। एक जमा से अब चूं निकलता नहीं। प्रश्न पूछा जाता है जब दोनों राष्ट्रपति यूनाइटेड स्टेट्स के, जो कि छद्म प्रधानमंत्री भी हैं भारत के, वह सीज फायर करते हैं, और जब प्रश्न दोनों से पूछा जाता है वॉशिंगटन डीसी में, तो जवाब नरेंद्र मोदी नहीं देकर के उनके छद्म प्रधानमंत्री भारत के डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। और टैरिफ तो वो जो चाहता है वो करता है। ये 56 इंच की छाती, पता नहीं हवा भरी है इसमें क्या है, ये गुब्बारा है, किसी दिन तो फूटेगा। सर, एक फ्रेश ट्वीट आया जिसमें रशिया और इंडिया की इकोनॉमी को वीक बताया है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक पागल आदमी है, और उसका वेवलेंथ जो है वो हमारे प्रधानमंत्री से मिलता है। सिर्फ ये है कि वह दबाव देके रखता है हमारे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ करके मियाऊ मियाऊ। ये तो स्वाभाविक था, मालूम है। That's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.